Hello everyone. Today we will see the new topic of NCERT, Animal Kingdom. So the name of this topic is Animal Kingdom. So we already seen in the previous chapter how the organism on the earth, they are going to divide it into two major, that is division. One is called animal and another is called the plant. In this chapter, we will see the various type of animals which are present on the earth. So various animals, you know that they have the different structure and their forms are different. Approximately, if you see, there are almost like 50 millions of animals are there. Like they are different. Animal means everything starting from here, that is called sponges, like marine animals, terrestrial animals, some are amphibians. So all these are various type of animals, and if you see them, they are of different types. They have a different their body structure. So what is the important is that we need to assign them in some systematic position, and we already learned in this chapter of biological classification how will you group all them in some systematic position. So in animal kingdom, if you see that there are almost how many animals? 50 million animals, right? How many? 50 millions. Okay. And we need to group them or assign them in some systematic position, and that is position is called phylum. It is called phylum. If it is the plant, in spite of word phylum, we are using the word that is called division. So in case of animal, we are using the word phylum. So how many animals we are going to assign in particular phylum? 50 million. As good as there are like 10 phylums if you start with the structure. But before classifying them or before assigning them, we should know that on the basis of which character we will going to assign them in particular phylum. So let's see, we will see some of the animal, right? So what are their different structure and why there is a need of basically classification. Okay, now if you see here, okay, everybody know this animal, right? So whenever you look at this animal, you can see the leg of this animal, the tail of this animal, the mouth, okay, you can see the teeth. I guess he is very angry. Okay, look at the what is that called, forelimbs and hind limbs. This all structure are the basic of the classification. I will just make it little bit smaller, okay, and then just turn it. Okay, now you can see, bigger करेगा तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिखेगा. Okay, look at him. Okay, so the eyes. Whenever you look at this animal, the first animal in your mind, what is that? That is the, you can see the lizard. You can see the lizard. It just looks like the lizard, but your problem is that lizard doesn't walk like this, right? So he might be biting me, right? So we will see one more animal, right? So this is like one. Now another we will see. Look at the another one, right? So you can see, I will just move it here. Okay, now you can see this is the bee, okay, and now you can see the wings, the legs, and the body is divided into head, thorax, and abdomen. I don't see the tail here, okay. This bee doesn't walk really. She is flying. Okay, I will just turn, and now you can see, if you make her big, and if you turn to on one side, you can see the eyes also, right? So some organism, they are flying. Some organism, they are walking along with your tail. We will take one more example, right? So this you can see, this is the bee. Now I will make it a little bit bigger. Okay. So everybody know this animal, you can call them, right? So they are like household, some are the wild one, some are the household one, right? So this one, you can see this animal, okay, that is the dog. You can look at the hand, right, forehand, okay. Then you can look, he's wiggling his tail. If you see the mouth, okay, I will just make it bigger, and now you can see the mouth, okay, the teeth. He's showing the tongue too, right? So you have to see all these things, right? So that's how animals are different and different. Now, if you want to
move from one place to another place. He don't really fly. He don't really creep. What he are going to do? I will just make it smaller. Okay, he just walk on his, that is called limb. So this walking thing is his speciality. So these are like different type on the basis of classification. That okay, we will see one more. Now you can look at that. Okay, so this one, just look at the body structure. I will just move the body and now you can see. Okay, look at him. He's walking calmly. He doesn't want to run because of the heavy weight. Look at the tail, which is very small. It's just not like really the dinosaur. Look at the face. Look at this horn, which is present at the nose. Okay, so we call him rhino. Okay, so if you see the face of this animal, I will just make it bigger. Now you can see every animal almost, they have different body structure. But whatever the structure you are seeing here, basically they are morphologically or externally different from each other. Okay, so if you cut this animal like this, right, if I'm going to cut this animal like this, so I will see the equal on both sides. But I will move it here, and if I cut here, now this is different shape and this one is a different shape. So this is called body symmetry. Such animal, they are bilaterally symmetrical, not radially. What is meant by bilateral symmetry, right? Like you already see, like human, like we are, if you cut ourselves from the midline, so you can see the equal half on the both the side. That is called bilateral symmetry. अब हमारा कट ऐसे नहीं और ऐसे कर लिया तो सामने से माउथ आएगा और पीछे से हमारा राइट, यू कैन सी द बैक साइड, तो वो सेम है क्या? नहीं. सो दैट्स व्हाई वी कम अंडर द बायलैटरल सिमेट्री. इफ यू टुक द सिलेंडर लाइक बॉक्स सिलेंडर, any cylinder, and if you cut at any plane, in any plane, it will cut into two equal half. इस तरह का अगर एनिमल होगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? रेडियल सिमेट्री. हम लोग क्या बोलते हैं उसको? रेडियल. सो दीज आर वेरियस काइंड्स ऑफ पॉइंट्स. ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी विल गोइंग टू डिफरेंशिएट द एनिमल इनटू लाइक मॉर्फोलॉजिकल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर and internal structure. So these are like various organism, or you can say animal. Now one more. Okay, look at this one. Okay, so I just move here. Okay, now if you see, I don't see the forelimb. आपको forelimb दिख रहे हैं? Okay, so basically forelimb is modified into wings. And hind limbs, they are used to claw or to clasp the branches. So if you see the mouth of this animal, you can see it is converted into beak. Okay, so if I want to just move him, now you can see the side one. So this is the different structure. So these are kind of various different types of animal on the basis of their external structure, morphology, their symmetry. Now we will see what are the bases of classification. Basis of classification. कौन से पॉइंट पे हम लोगों ने एनिमल किंगडम को क्लासिफाई किया? तो पहला पॉइंट है, द फर्स्ट पॉइंट इज body organization. First point is body organization. What is body organization, right? Body organization यानी अगर आप उसको देखोगे, को आप डिसेक्ट करोगे तो आपको देखना है कि किस तरह से उसका बॉडी ऑर्गेनाइज है. यानी कैसा हो सकता? सेल से बना हो सकता. ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? सेलुलर टाइप ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, राइट? तो ये इस तरह से सेल है, ये कुछ इस तरह से सेल है, राइट? तो ये हो गया सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, राइट? कुछ इस तरह के सेल है. सो दिस इज काइंड ऑफ सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, राइट? सो ये हो गया आपका सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. नाउ इन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड पॉइंट वी विल सी, एक हो गया सेलुलर. अब दूसरे में क्या होता है? देयर आर सम काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच सिमिलर सेल दे कम टुगेदर एंड दे फॉर्म द टिश्यू. अब यहाँ कैसे सब अलग अलग है? ओके, जब सिमिलर पास में आ जाएंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टिश्यू. सो इफ यू सी हियर ऑल दिस ब्लू वन, इफ दे केम टुगेदर, राइट, and they form one
big tissue. Now you can say this is the tissue type of organization. Okay. Now third type of organization in body is body organization का तीसरा टाइप है, that is called organ. That is called organ. तो ये सारे सेम सेल एक ऑर्गन बना देंगे, राइट? समझ ले, पाउच बना दिया, सो एंड दिस होल फॉर्म वन ऑर्गन. सो दिस इज कॉल्ड ऑर्गन टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अब जैसे इसने बनाया वैसे एक दूसरा रेड वाला बना देगा, राइट? रेड वाले सेल और टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन बना देगा, राइट? सो दिस इज अनदर ऑर्गन. नाउ दिस टू ऑर्गन्स आर कनेक्टेड, राइट, फॉर सम फिजियोलॉजिकल फंक्शन. तो इस तरह के ऑर्गन एक दूसरे को जो मिलकर है उनको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम. इसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम. तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. हम लोग डिटेल में बाद में देखेंगे. सेकेंड पॉइंट इज बॉडी सिमेट्री. सेकेंड पॉइंट इज बॉडी सिमेट्री. अगर किसी ऑर्गेनिज्म का शेप इस तरह से सर्क्यूलर है, राइट, और इस ऑर्गेनिज्म को आपको सेंटर पॉइंट से यहां से कट करो तो दो इक्वल हाल्फ हो गए, यहां से कट करो तो दो इक्वल हाल्व्स हो गए. सो फ्रॉम सेंटर से अगर आपने इसको कट किया, वट एवर द हाल्व्स यू आर सीइंग दे आर एग्जैक्टली ईच अदर. तो इसको बोलते हैं रेडियल, क्योंकि कहीं पर से भी कट करो, ओके, कहीं से भी कट करो, दे विल कट इनटू टू इक्वल हाल्व. बॉडी सिमेट्री में दूसरा है बायलैटरल. बायलैटरल यानी बेसिकली इफ दिस इज द एनिमल, राइट, नाउ यू कैन कट दिस एनिमल इनटू टू इक्वल हाल्व, एक ही जगह से, राइट, दिस वन. सो दिस इज कॉल्ड बायलैटरल. वी आर बायलैटरल. और अगर हम लोगों ने इसको इफ वी कट फ्रॉम दिस साइड तो होगा क्या? बायलैटरल. इधर ये आ गया, इधर है नहीं. सो बायलैटरल यानी एक ही प्लेन से करने के बाद इट विल कट इनटू टू इक्वल हाफ्स. ओके, अब समझ लो एक अमीबा है या कोई दूसरा मल्टीसेल्युलर. दिस इज ऑल अबाउट द मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. वी आर नॉट रियली टॉकिंग हियर अबाउट द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म लो, समझ लो आपके मरीन के स्पंजेस है, दीज आर कॉल्ड स्पंजेस. अब इसको कहीं से भी कट करो, इट विल नॉट बेसिकली कट इनटू टू इक्वल हाफ्स. तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? असिमेट्रिकल. तो ये हो गया आपके बॉडी सिमेट्री. तो ये एक और पॉइंट है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का. तीसरा है नेचर ऑफ सीलोम. व्हाट इज सीलोम? सीलोम इज द बॉडी कैविटी. सीलोम इज कॉल्ड बेसिकली द बॉडी कैविटी. अगर हम लोग देखेंगे तो ये है हमारा इसोफेगस है, ये हमारा स्टमक है. तो ये एक ट्यूब है हमारे इसमें, और ये है हमारी बाहर से बॉडी वॉल. सो इफ यू कट योर बॉडी, यू कैन सी दैट दिस इज द कट सेक्शन ऑफ योर स्टमक and this is the cut section of your body wall. Now if you see here, so this is stomach जो GIT है, और ये आपकी बॉडी वॉल, ये आपकी बॉडी वॉल जो स्किन वगैरह. अब ये जो बीच में जो है, ये जो दिख रहा है आपको, दिस इज बेसिकली द बॉडी कैविटी. दिस इज बेसिकली द बॉडी कैविटी. सो फ्रॉम ये बाहर से आपकी बॉडी वॉल, अंदर से ट्यूब GIT का, और बीच में जो है दिस इज कॉल्ड द बॉडी कैविटी. उसको हम लोग बोलते हैं सीलोम. जिसमें सीलोम है उसको बोलेंगे सीलोमेट, और जिसमें सीलोम नहीं है उसको बोलेंगे असीलोमेट. उसको क्या बोलेंगे? असीलोमेट ऑर्गेनिज्म. समटाइम हमें लगता है कि वी थॉट दैट देयर इज अ सीलोम, बट सीलोम नहीं होता. लगता है बट नहीं होता, उसको बोलते हैं सूडो सीलोमेट. ये सूडो वर्ड यानी फॉल्स. सूडो यानी फॉल्स, राइट. सो कैविटी है सीलोमेट, कैविटी नहीं है असीलोमेट. लग रहा है बट फिर भी नहीं है, दैट इज कॉल्ड सूडो सीलोमेट. तो ये एक और पॉइंट हो गया आपका क्लासिफिकेशन का, राइट. नाउ फोर्थ पॉइंट इज डाइजेशन, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. डाइजेस्टिव ट्रैक आपने यहां देखिए, हमें कैसा है, हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक स्टार्ट कहां से होती है? माउथ से होती है, और खत्म किधर होती है? एनस से होती है, राइट. तो हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक कैसे? माउथ से स्टार्ट हुई और खत्म किधर हुई? एनस से. यानी एक जगह से हम लोग क्या करते हैं, दैट इज कॉल्ड एंट्री ऑफ फूड, और एक जगह से एग्जिट होता है. सो हाउ मेनी ओपनिंग्स? पूरे ट्यूब में कितने ओपनिंग हो गए हैं? माउथ एक और एनस दो. सो खाना एक जगह से और डेफिकेशन अलग जगह से. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कंप्लीट
डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे रहते हैं कि जिनके पास एक ही ओपनिंग रहता है, जहां से वो खाते हैं वहां से वो वेस्ट बाहर निकलते, राइट। तो वो क्या हो गया, इनकम्प्लीट। वो क्या हो गया, इनकम्प्लीट। तो एक और पॉइंट हो गया हमारे लिए डिफरेंशिएशन के लिए एनिमल का। 4 हो गए। अब एक है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, व्हाट इज सर्कुलेटरी सिस्टम? सर्कुलेटरी सिस्टम अगर आप देखोगे तो आपकी बॉडी में जो फ्लूइड है दैट इज कॉल्ड ब्लड या लिम्फ, वो कौन इधर उधर करता है, हार्ट में से पंप होता है, और आपके जो वेसल है, जो भी आर्टरी है, वेन है, वो हर एक ऑर्गन को आपका ब्लड पहुंचाते हैं। तो ये बंद है, सारे वेसल्स बंद है, तो इसको बोलते क्लोज। यानी हार्ट में से किसी ऑर्गन को एक ट्यूब में से भेजना, यहां एक ऑर्गन है, फिर यहां एक ऑर्गन है, राइट। तो इस तरह से बॉडी फ्लूइड जा रहे थे, इसको बोलते क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। देयर इज अनदर विच इज कॉल्ड ओपन, जहां पर हार्ट तो रहता है बट ब्लड कोई ट्यूब से नहीं जाएगा, सीधा ब्लड बाहर गिर जाएगा, राइट। सीधा ब्लड बाहर। तो ऑर्गन क्या, ऑर्गन को डायरेक्टली उस ब्लड में जैसे बाथ लेते हैं ना शॉवर के नीचे, उस तरह से ऑर्गन को उसके नीचे बाथ लेनी पड़ेगी, नॉट थ्रू द क्लोज वेसल। सो दिस इज कॉल्ड ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। और है इसके पॉइंट लाइक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या खाते, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे करते। तो ये हो गए आपके पॉइंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। एक और है नोटोकॉर्ड। What is this basically notochord? Notochord, it is the cord which is present on the back, not on the back side. It is the cord which can be present on the back side और वेंट्रल साइड। ओके, सो अगर ये है तो हम लोग उसको कॉर्डेट बोलेंगे, अगर ये नहीं है तो उनको बोलेंगे नॉन कॉर्डेट। तो हम लोग ये धीरे 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 सारी चीजें पढ़ेंगे। सो दीज आर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ योर ऑल एनिमल किंगडम। तो पहले हो गया बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, फिर हो गया बॉडी सिमेट्री कैसा है, उसके बाद सीलोम है या नहीं है, उसके बाद डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज है या ओपन है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन किस तरह से है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस तरह से है, राइट, नोटोकॉर्ड है या नहीं है। सो फर्स्ट वी विल सी द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब हम लोग देखते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो फर्स्ट वी कैन सी द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। So if you see the level of organization, right, so we are seeing all multicellular organism, right, okay, so body organization में मैंने 3 बोले थे आपको, एक था सेलुलर, दूसरा था टिश्यू और तीसरा था ऑर्गन। एक और है जिसको हम लोग बोलते ऑर्गन सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते organ system organization. We are talking about all multicellular organism, right? लेकिन सारे ऑर्गेनिज्म में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, राइट। अब इस हिसाब से इनके बॉडी के फंक्शन डिवाइड रहते हैं। सो पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसी में सेलुलर हो सकता ऑर्गेनाइजेशन, किसी में टिश्यू हो सकता, किसी में ऑर्गन हो सकता, पूरा बॉडी एक ऑर्गन की तरह काम कर रहा है, या ऑर्गन सिस्टम हो सकता है। व्हाट इज ऑर्गन सिस्टम? यानी 3-4 ऑर्गन ने मिलाकर एक फंक्शन करना है, राइट। जैसे हमारे इसमें ब्रीदिंग हमारा लंग करता है, फिर वहां ऑक्सीजन मिलेगा, वो ऑक्सीजन आपके हार्ट के पास जाएगा, फिर हार्ट एक ऑर्गन है आपके बॉडी के दूसरे ऑर्गन को सप्लाई करेगा। तो ये ऑर्गन सिस्टम हो गया। पूरा बॉडी की बॉडी एक पूरा अगर ऑर्गन है देन यू कैन कॉल देम, दैट इज कॉल्ड ऑर्गन। टिश्यू यानी सिमिलर सेल्स सब एक पास में आ गए, दे आर परफॉर्मिंग वन फंक्शन, इट इज कॉल्ड टिश्यू। एंड सेलुलर तो आपको पता है, देयर इज नो लाइक ऑल सेल्स आर अरेंज वन अबाउट द अदर। सो इफ यू सी द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे एग्जांपल हम लोग देखते हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आपको मिलेगा एनिमल जो है स्पॉन्जेस में। अब स्पॉन्जेस को स्पॉन्जेस क्यों बोलते होंगे? क्योंकि इफ यू सी द स्पंज, फर्स्ट थिंग यू शुड कम इन योर माइंड, स्पंज में क्या होता था, देयर इज अ पोर्स, और आप जैसे ही आपका स्पंज वाटर में डिप करते तो वो पोर में क्या हो जाता, पानी चला जाएगा। इफ यू स्क्वीज द स्पंज, पानी बाहर निकल जाएगा। आपकी बॉडी के साथ ऐसा होता क्या? आप पानी किस तरह से पीते? आप माउथ से पानी पीते। लेकिन स्पंजेस ऐसे ऑर्गेनिज्म है, राइट, सो दे आर जस्ट सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है उनका, राइट। सेल एक के ऊपर ऐसे रख दिए,
और पानी अंदर जाएगा और पानी बाहर निकल जाएगा, राइट। तो ये छोटे छोटे छेद होने की वजह से उनका नाम क्या दिया है, ऐसे ऑर्गेनिज्म का स्पॉन्जेस। तो देयर आर सो मेनी ऑर्गेनिज्म विच कम्स अंडर द स्पंजेस, जो हमको देखने एक एक ओके, बट देयर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज सेलुलर। सेलुलर के एग्जांपल है स्पॉन्जेस। ओके, नाउ इफ यू सी द अनदर वन दैट इज कॉल्ड, हम आपके सारे फाइलम लिखते, सबसे पहला है आपका दैट इज कॉल्ड फाइलम। डिवीजन में नहीं, फाइलम में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला है फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा में पोरस बॉडी रहती, इनमें सारे स्पंजेस आ जाते हैं और इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा है, दैट इज कॉल्ड सेलुलर। उसके बाद कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे जैसे सिलेंट्रेटा हो गया, जैसे हाइड्रा लिख देते हैं। हाइड्रा एक एनिमल है जिस हाइड्रा में सिमिलर सेल इस तरह से पास में आ गए और उन्होंने टिश्यू बना दिया है। एंड नाउ यू कैन सी टिश्यू टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन केस ऑफ हाइड्रा, ओके, जिसको हम लोग सिलेंड्रेट बोलते हैं। ओके, ऑल दिस सेल दे परफॉर्म द सेम फंक्शन। यहाँ तो सारे सेल डिफरेंट डिफरेंट सेल अपना अपना सेल स्पंजेस में अपना अपना फंक्शन कर रहे थे, लेकिन यहाँ क्या हो गया, ऑल सिमिलर सेल दे कम टुगेदर एंड दे परफॉर्म द फंक्शन। यहाँ नहीं है, यहाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल है, राइट। तो ये हो गया आपका टिश्यू लेवल। सिलेंट्रेट जिसमें कौन सा है, सिलेंट्रेट। ओके, ऑर्गन लेवल यानी होल ऑर्गेनिज्म। इफ यू सी द होल ऑर्गेनिज्म, इसमें इस तरह से सेल अरेंज रहते। दिस होल ऑर्गेनिज्म एक्ट एज अ ऑर्गन, वन ऑर्गन। ओके, नाउ सच ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड ऑर्गन लेवल। इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल के एग्जांपल है प्लैटीहेल्मिंथ। प्लैटीहेल्मिंथ यानी फ्लैट वर्म हो गए जो आपके, व्हाट इज दैट कॉल्ड, प्लैटी यानी फ्लैट वर्म, हेल्मिंथ यानी वर्म। सो ये ऑर्गन है और हम क्या है, हम ऑर्गन सिस्टम है, क्योंकि हमारे पास बहुत एक ऑर्गन है कि पूरी बॉडी हमारा नहीं, पूरी बॉडी में हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन है। सो दैट इज, so what are the example of your which one, that is called sponges is the example of cellular organization। टिश्यू का आपका हो गया हाइड्रा, ऑर्गन का हो गया आपका प्लैटीहेल्मिंथ जिसको हम लोग फ्लैट वर्म बोलते हैं, राइट। इसमें टिश्यू में सिलेंट्रेट भी आ जाएंगे। ऑल द सेल विच परफॉर्म द सिमिलर फंक्शन वो अरेंज होके किसमें आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड टिश्यू में। अब उसके बाद के जो है आपके जो मॉस्किटोज है, अर्थवर्म हो गया, आपके जो इंसेक्ट है, मॉलस्क है, स्टारफिश जो हो गए, ये सारे किस में आ जाएंगे, ऑर्गन सिस्टम में आ जाएंगे, राइट। क्योंकि इसमें ऑर्गन सिस्टम में क्या हो जाता, पूरा बॉडी एक ऑर्गन नहीं बनता। होल बॉडी डजंट एक्ट एज अ ऑर्गन। इन वन बॉडी देयर आर मेनी ऑर्गन एंड दिस मेनी ऑर्गन परफॉर्म one function। Okay, so this two organ perform one function, another two organ perform the another function। यानी 4-5 ऑर्गन मिलाकर एक फंक्शन करते। फिजियोलॉजिकल फंक्शन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, जैसे हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन है, डाइजेशन है। जैसे डाइजेशन अगर आप चैप्टर देखोगे तो क्या क्या आता है उसमें ऑर्गन, पूरा आपका एलिमेंट्री ट्रैक्ट आ गया, जीआईटी बोलते, सलाइवरी ग्लैंड आ गए उसमें, लीवर आ गया आपका उसमें, राइट, पैंक्रियाज आ गया। तो ये सारे मिलाकर क्या कर रहे हैं, डाइजेशन। तो इसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। अगर वो ऑर्गेनिज्म का पूरा बॉडी ही एक ऑर्गन जैसे काम कर रहे तो उसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। सेल सेल वाला हो तो कोई टेंशन नहीं, ईच सेल परफॉर्म डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन, तो उसको बोलते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सिमिलर सेल अगर पास में आ जाए और देन दे परफॉर्म वन फंक्शन, देन इट इज कॉल्ड टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। लॉट ऑफ पीपल दे आर कंफ्यूज बिटवीन टिश्यू एंड ऑर्गन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन टिश्यू एंड ऑर्गन, इट इज अ लेयर, इट इज बेसिकली द लेयर ऑफ वेरियस टाइप ऑफ सेल। अगर आप आपका एम्ब्रियो देखोगे तो 3 टाइप के आपके पास जर्म लेयर है। एक है आपका एक्टोडर्म, दूसरा है आपका एंडोडर्म और तीसरा है आपका मेसोडर्म। तो ये तीनों लेयर का डिफरेंशिएशन आपको ऑर्गन सिस्टम में मिलेगा, आपको टिश्यू में आपको इस तरह का लेयर फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑर्गन फॉर्म होने के लिए ये तीनों लेयर का प्रॉपर अरेंजमेंट होना बराबर है, राइट। जो बाहर के सेल है एक्टोडर्म, बीच के सेल है मेसोडर्म और अंदर के सेल है एंडोडर्म,
तभी आपका ऑर्गन फॉर्म हो। टिश्यू में इस तरह से कोई एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म नहीं रहेगा। दैट्स व्हाट द डिफरेंस बिटवीन योर विच वन, दैट इज कॉल्ड द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सो दिस ऑर्गन सिस्टम एग्जिबिट इन अ डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न। एग्जाम्पल जैसे सिर्फ ऑर्गन, जैसे प्लेटी हेलमिंथिस है जिसको हम लोग फ्लैट वर्म बोल सकते हैं, राइट। सो इन फ्लैट वर्म डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या हो गया, पूरा जो देखो ये पूरा फ्लैट वर्म में एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, ट्यूब है, और इसको ओपनिंग देखो कहाँ है, एक ही ऊपर ओपनिंग है। यू कैन सी देयर इज ओनली वन ओपनिंग। इस ओपनिंग को हम लोग बोलते हैं माउथ। ये फ्लैट वर्म में अगर आप देखोगे देयर इज ओनली वन ओपनिंग, दैट इज कॉल्ड माउथ। तो यहां पर आप लिख सकते व्हाट इज क्या, इट इज अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट, क्योंकि ओपनिंग सिर्फ एक है। यहां से ओपनिंग है क्या बाहर निकलने का इन फ्लैट वर्म, नो, दैट इज इट्स इनकम्प्लीट, दैट इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम, ओके, और इनकम्प्लीट ऑर्गन। ह्यूमन में सेपरेट है माउथ और एनस। सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन, आपका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इफ यू सी द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, we are talking about the cellular, we are talking about the cellular organization. So in cellular organization you can see there are balloons. I just took the analogy example, एक analogy है, हम लोग देखते हैं इस तरह से तो आपके ऑर्गेनिज्म नहीं होते। You can see there are different different balloons here, right? Red है, green है, blue है, yellow है, all these balloons are different but they are together, they are basically together, and each balloon might be it's just like one cell, it's just like the one cell, each cell perform different function. ये सेल अपना येलो कलर दिखा रहा है, ये ब्लू वाला कुछ और काम कर रहा है। so if I enlarge it, so you can see there, this, just think that this is your one kind of animal. This animal is made up of like different cell, and each cell perform the different function. Such organization is called cellular organization, जिसमें सेल अपने अपने काम करता है, राइट। सो कैन यू सी देयर इज एनी स्ट्रक्चर हियर, जैसे ये बलून में स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा उसी तरह से वो ऑर्गेनिज्म इस तरह से रहेगा। समझ लो ये आपके उसके कुछ सेल है, बीच में कुछ दूसरे सेल कुछ और काम कर रहे हैं अपना, एक फिर एक तीसरे सेल आ गए, राइट। कोई सिमिलर सेल पास में ऐसा कुछ नहीं है, राइट। ऑल आर डिफरेंट अपना अपना काम कर रहे हैं, राइट। सो और ये पूरा किसी चीज से कनेक्ट रहेगा, जैसे वहां थ्रेड है, एंड नाउ दिस होल यू कैन सी दिस इज वन एनिमल। इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं हम लोग सेलुलर, और ये कहाँ मिलता है, स्पॉन्जेस में मिलता है। नेक्स्ट वी विल सी सर्कुलेटरी सिस्टम।